बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर कैडेट्स, दिस इज फयाज हसन भट्टी, लेक्चरर कैडेट कॉलेज पन्नौर। I welcome you all in these video classes. Today we are going to learn about mathematics of class first year. There are 13 chapters in mathematics books of class first year. Chapter number 1 sets, chapter number 2 real and complex number systems, chapter number 3 equations, chapter number 4 matrices and determinants, chapter number 5 groups, chapter number 6 sequences and series, chapter number 7 permutations, combinations and introduction to probability, chapter number 8 mathematical induction, binomial theorem, chapter number 9 fundamentals of trigonometry, chapter number 10 trigonometric identities, chapter number 11 graphs of trigonometric functions, chapter number 12 solution of triangles, chapter number 13 inverse trigonometric functions and trigonometric equations. So lecture number 1, today we will learn chapter number 1, which is sets. The sequence of the lecture follows as under. Number 1 difficult words, number 2 introduction of set theory, number 3 concept of set, number 4 ways of writing of a set, number 5 notations for set of numbers, number 6 types of set, number 7 operation on set. So topic number 1 difficult words. Number 1 formulating means to make, banana. Number 2 analyzing to study deeply means tajziya karna. Number 3 notions means motives, maqsad. Number 4 elementary means initial 8 classes, ibtidai maktab. Number 5 formal education means legal and official, kanuni or sarkari. Number 6 item means thing, cheese. Number 7 concept means idea, khayal. Number 8 notation means symbol, alamat. Number 9 listing means item, cheese. Number 10 stating means to describe, वजाहत करना. Number 11 properties means characteristics means खुसूसियात. Number 12 rule means law, कानून. Number 13 particular means specific, मखसूस. Number 14 object means thing, cheese. Number 15 suit means appropriate, मुनासिब. Number 16 contain means include, शामिल होना. Number 17 unlisted means not on a list, गैर दर्ज शुदा. Number 18 display, show, दिखाना. Number 19 integer, whole number means पूरा अदद. Number 20 roster means listing, फेहरिस्त साजी. Topic number 2 introduction of set theory. The set theory was introduced in 19th century by German mathematician Georg Cantor in 1845 to 1918. He was the first mathematician who introduced the basic idea of set theory. सेट थ्योरी जो थी वो 19वीं सदी में जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने इंट्रोड्यूस करवाई 1845 to 1918 में. ये पहला मैथमेटिशियन था जिसने बेसिक आइडिया दिया सेट थ्योरी का. इसकी जो डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लियरली आइडेंटिफाइड. इसका सेट, इसका मतलब है द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज़ों का मजमुआ that are clearly identified, जो वाजे हो, उसको हम सेट को कहेंगे. The objects in the set are called the number or elements of the set. इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम मेंबर या एलिमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सोफा सेट, डिनर सेट, कंप्यूटर सेट, etc. ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोफा सेट, डिनर सेट, कंप्यूटर सेट, etc.
या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी फुटबॉल टीम, स्टूडेंट ऑफ सेम क्लास। यहाँ पे जो सोफा सेट है ये क्लियरली आइडेंटिफाइड है, वाजे है। और यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट, यहाँ पे जो पाकिस्तानी वर्ड है ये भी क्लियरली आइडेंटिफाइड है। और स्टूडेंट ऑफ सेम क्लास, यहाँ पे जो सेम क्लास है ये भी क्लियरली आइडेंटिफाइड है। उसके बाद जो सेट की नोटेशन से हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है सेट को। सेट को जो है ना, सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सेट को कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के साथ डिनोटेड करते हैं। और मेंबर ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, जो उसके सेट के मेंबर हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसे ABCXYZ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू ABC, यहाँ पे देखें ये ABC जो है ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, मेंबर हैं और स्मॉल लेटर। पार्ट नंबर इसका जो 3 है, दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट S are denoted by mod S or by number of S or by order of S। जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम mod ऑफ S के साथ या नंबर ऑफ S के साथ या ऑर्डर ऑफ S के साथ जाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा ABCD, ऑर्डर ऑफ A इसका कितना हुआ 4, मींस ऑर्डर ऑफ A का मतलब है तादाद, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट। देयर आर 3 वेव्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट। सेट को कितने तरीकों में लिखा जा सकता है? सेट को 3 तरीकों में लिखा जाता है। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मींस बयानिया शक्ल। A set can be described in a word। ऐसा सेट जिसको सेंटेंस में लिखा जाए उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, जैसे द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 3। यहाँ पे होल नंबर, नेचुरल नंबर और जो प्राइम नंबर है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उसमें इसको डिफाइन करेंगे। तो इसमें ये जो कर रहा था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसका मतलब है 1 2 3 4 5। और बिटवीन 2 and 3 कौन से नंबर जो प्राइम हो वो लिखें। इसका जो वेव्स ऑफ राइटिंग का दूसरा पार्ट है वो है टेबुलर फॉर्म, मींस इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, मींस इंद्राजी शक्ल। A set can be written in middle brackets and separated by comma। ऐसा सेट जिसको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखें और सेपरेट करें कामा से तो उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 है, ये देखें इनको हमने सेपरेटेड किया है कामा के साथ और मिडिल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मिडिल ब्रैकेट का दूसरा नाम होता है कर्ली ब्रैकेट। बी, जैसे दूसरा एग्जांपल है इसका B इक्वल टू ABC, ये भी देखें A कमा B कमा C, इसको सेपरेटेड किया है हमने कामा के साथ। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट्स है वेव्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट की, वो है सेट बिल्डर फॉर्म मींस रियल फॉर्म। तरकीब सेट साज, अ सेट कैन बी रिटन इन सिंबॉलिकल वे। ऐसा सेट जिसको हम सिंबॉलिकल वे में लिखें तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। जैसे D इज इक्वल टू X सच दैट X is prime and X greater than by 2। E is equal to X such that X is odd and X greater than by 2। The vertical bar means such that, यहाँ पे वर्टिकल बार नजर आ रही है इसको हम कहते हैं सच दैट। और ये जो सिंबल नजर आ रही है इसका मतलब है ग्रेटर देन। इसको पढ़ते कैसे इंग्लिश में, ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स प्राइम एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि ग्रेटर देन और लेस देन कैसे याद रखें हम। ये जो आपका राइट हैंड साइड है इसकी जो ये सिंबल है ये ग्रेटर देन है, और लेफ्ट हैंड साइड की ये जो सिंबल आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं हम लेस देन। फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल नजर आ रही है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। एन मींस नेचुरल नंबर, यहाँ पे ये जो सिंबल है एंड, 1 लेस देन आर इक्वल टू, इस सिंबल को कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू। एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। नेचुरल नंबर वो बताएं जो 1 से लेकर 10 तक हो, 1 2 3 4 अप टू 10 तक। एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी का मतलब है यहाँ पे प्राइम। एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 11, वो नंबर बताएं जो 2 और 11 के बीच में, वो कौन से जो प्राइम नंबर हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोटेशंस फॉर सेट ऑफ नंबर्स। There are 10 notations for set of numbers।
Number one, the set of all natural numbers means कुदरती अदाद. It is also called counting number. वो नंबर जो गिनने में जो है ना काम आए उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर. इट इज डिनोटेड बाय एन. जैसे कहते हैं 1 2 3, तो इसको डिनोटेड किया जाता है कैपिटल एन के साथ. एन इज इक्वल टू 1 2 3. नंबर टू, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स मींस मुकम्मल आदाद. ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू. ये जो जीरो है, जीरो अगर इंक्लूड किया जाए नेचुरल नंबर्स में तो आपका होल नंबर बन जाता है. जैसे w इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारा होल नंबर हो गया. अब उसके बाद है इंटीजर. इंटीजर क्या है? नंबर विदाउट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इंटीजर. ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो उसको हम इंटीजर कहते हैं. जैसे 0 0 मुकम्मल नंबर है, 1 भी मुकम्मल नंबर है. मुकम्मल नंबर किसको कहते हैं? जो डेसिमल में ना हो या पान फॉर्म में ना हो तो उसको कहते हैं मुकम्मल नंबर. इसका पार्ट नंबर 3 है सेट ऑफ ऑल इंटीजर मींस सही अदाद. द यूनियन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर आर कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इट इज डिनोटेड बाय z. पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो ऊपर से चार्ज देख रहे हो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की. इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लिखे हैं तो उसको हम सही अदाद कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन. ये मोस्टली जो ये नंबर्स हैं हम रियल लाइन पे शो करते हैं. रियल लाइन में ये जो ओरिजिन होता है वहाँ पे 0, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड. फिर इसके दो टाइप हैं, जैसे डेफिनेशन में आपने पढ़ा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. फिर पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर ए वैल्यूज ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़े हो. इट इज डिनोटेड बाय z पॉजिटिव 1 2 3. और द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर है वह वैल्यू लेस देन 0. इट इज डिनोटेड बाय z नेगेटिव. z नेगेटिव -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. इसका पार्ट नंबर 4 है द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स जुफ्त आदाद. नंबर व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2. ऐसे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय हो 2 के साथ डिवाइडेड हो जाएं तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है E इज इक्वल टू 0 2 4 6. 0 क्या है? कंप्लीटली डिवाइडेड है 2 के साथ. जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1. 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा 2. 6 को डिवाइड करें 2 के साथ तो आंसर आएगा 3. मींस ये क्या है? टोटली कंप्लीटली डिवाइडेड है किसके साथ? 2 के साथ. अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ. द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स मींस ताक अदाद. अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर. ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइडेड ना हो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O. O इज इक्वल टू 1 2 1 3 5. 1 देखें कंप्लीटली डिवाइडेड 2 के साथ नहीं है क्योंकि आंसर आ रहा है 0.5. 3 does not completely divided by 2. 5 also does not completely divided by 2 क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है 2.5 डेसिमल में आ रहा है, इसी वजह से ये कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है. उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स मींस मुफरद आदाद. नंबर ग्रेटर देन 1 एंड कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ. ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और डिवाइडेड हो इटसेल्फ. जैसे 2 ग्रेटर देन है 1 से और 2 सिर्फ डिवाइडेड होगा इटसेल्फ. इसको ऐसा कोई और नंबर नहीं है जो इसको कंप्लीटली डिवाइडेड करे. उसके बाद है 7 नंबर द सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स मींस मुरकिब आदाद. प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइड ऑफ 2 नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय C. या इसकी दूसरी डेफिनेशन है एटलीस्ट 3 आर मोर देन फैक्टर्स हो. ऐसा नंबर जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. जैसे 4 है, 4 के जो फैक्टर है वो 1 है 2 है और इटसेल्फ है. 6 के 1 है 2 है 3 है एंड इटसेल्फ है. देखें एटलीस्ट 3 आर मोर देन, 3 से ज्यादा हो गए तो इसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर. एक चीज नोट करें, 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट. ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट नंबर होता है बिकॉज ओनली 1 डिवाइजर इटसेल्फ. उसका एक ही डिवाइजर है वो इटसेल्फ.
Point number 8 is the set of all rational numbers means नातिक आदाद. A number which can be written in division form is called rational number. It is denoted by Q. इसको जैसे हम Q is equal to X is equal to P upon Q and P comma Q belongs to Z means integer but Q does not equal to 0. यहाँ पे कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है आपका वो does not equal to होना चाहिए 0 के. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 0, 1, -2, -1 upon 2 etc. ऐसे नंबर इनको हम रेशनल कहते हैं. जैसे आपने पीछे सेट ऑफ नोटेशंस पढ़ा, सेट ऑफ नोटेशन ऑफ नंबर्स पढ़े, वो सारे के सारे आपके क्या है रेशनल है. कौन से? नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोज, इवन, ऑड, ये सारे के सारे क्या है रेशनल है. क्योंकि उसके नीचे 1 लिखते हैं, सॉरी समझा जाता है, लिखते नहीं है, इसी वजह से वो आपका रेशनल है. इरेशनल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर मींस गैर नातिक आदाद, अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन डिविजन फॉर्म. ऐसे नंबर जो डिविजन फॉर्म में ना लिख सके तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई या क्यू डैश कहा जाता है इसको. इसको हम सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं? क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स डज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू and p comma q belongs to integer but q does not equal to 0. For example under equal to इसका जो आंसर आएगा कभी भी जो है ना इसको आप रेशनल फॉर्म में मींस कन्वर्ट नहीं कर सकते, p upon q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इसी वजह से इसको हम इरेशनल नंबर को बोलते हैं. यहाँ जैसे क्यूब रूट ऑफ 6 से 6 के क्यूब रूट बताएं, जो उसका क्यूब रूट निकलेगा तो वो भी कभी भी एक तो इसका एग्जैक्टली क्यूब रूट नहीं निकलेगा और ना कन्वर्ट होगा p upon q फॉर्म में. लास्ट इसका जो मींस पॉइंट है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मींस हकीकी आदाद. द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ये जो आपने रेशनल पढ़ा और इरेशनल पढ़ा, इन दोनों को अगर मिला के एक सेट के अंदर रखें तो ये हमारा रियल नंबर बन जाता है. जैसे इसको सेट बिल्डर में हमने लिखा है x is equal to p upon q and p comma q belongs to z integer but q does not equal to 0 and x does not equal to p upon q and p comma q belongs to integer but q does not equal to 0. ऐसे सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सेट. इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है एग्जिस्ट्स, प्रेजेंट, बिलोंग, ताल्लुक रखना, इनफैक्ट, एक्चुअली, दरअसल, और एडमिट मींस एक्नॉलेज, एक्सेप्ट तस्लीम करना, कंसीडर का मतलब है टू थिंक अबाउट, गौर व फिक्र, वेरियस का मतलब है मेनी बहुत, वाइस वर्सा सिमिलरली इस तरह, ऑर्डिनरी यूजुअल हमेशा की तरह, अल्टर का मतलब है एक्सचेंज तब्दील, इनक्लोज क्लोज इन बंद करना, कंपोनेंट का मतलब है पार्ट हिस्सा, अनलेस एक्सेप्ट सिवाय, कंटेंट मींस मेंबर मवाद. अब डेफिनेशन से सबसेट्स मींस ताती सेट. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, if every element of set A is present in set B, then set A is called subset of set B. It is denoted by A subset B. इसका मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट किसके अंदर मौजूद हो? B सेट के अंदर मौजूद हो, तो उसको कहेंगे कि A is a subset of set B. फॉर एग्जाम्पल A के एलिमेंट है 1, 2, B के एलिमेंट है 1, 2, 3, तो 1, 2 किस में मौजूद है? B के अंदर मौजूद है, तो देन A is a subset of B. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रॉपर सबसेट, वाजिब ताती सेट. ये टाइप है किसका? सबसेट का. तो इफ B is the proper subset of A, B क्या है? कब होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ A का? जब देन ऑल एलिमेंट ऑफ B आर इन A, B के सारे एलिमेंट किसके अंदर मौजूद हो? A के A सेट में, बट A कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट that is not in B. A का ऐसा कम से कम एलिमेंट, एक एलिमेंट जो B के अंदर मौजूद ना हो, is more than हो, तो it is denoted by B proper subset. For example 1, 3, 5, 1, 5, B के एलिमेंट देखें 1, 5 मौजूद है A के अंदर. A में एक ऐसा एलिमेंट है जो मोर देन है किससे? सेट B से, तो इसी वजह से कहेंगे कि B is the proper subset of set A.
ये जो इम्प्रॉपर सबसेट है ये भी सबसेट का टाइप है, मींस गैर वाजिब तहती सेट है. If A subset of B and B subset of A, then sets A and B are said to be improper subset of one another. Means दोनों इक्वल सेट होने चाहिए. A अगर A के सारे एलिमेंट B में हो या B के सारे एलिमेंट A में हो तो उसको कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट. तो देखें A is the subset of B, B is also subset of A. उसके बाद Part 4, power set. Qth set, the set of all possible subset of set A is called the power set of set A. It is denoted by P. P किसको denoted कर रही है? Power set को of A. इसका जो मतलब है all possible subset, जितने भी इसके possible subset बनेंगे उसी को हम power set कहेंगे. जैसे यहाँ पे example है B is equal to A. एक एलिमेंट के मीन्स कितने जो है ना पावर सेट बनेंगे वो दो. कौन से? एक एम्पटी, दूसरा खुद इट सेल्फ जो है. और ये जो नल सेट होता है, एक चीज याद रखें कि नल सेट एवरी सेट का सबसेट होता है. अब यहाँ पे जो नल सेट है, जैसे दूसरा एग्जांपल है नल सेट. नल सेट के कितने बनेंगे? एक कौन सा? नल सेट इट सेल्फ जो है. उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, सुपर सेट, बाला सेट. इफ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, B अगर सबसेट है सेट A का, देन सेट A इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ B. फिर A सेट जो कहलाएगा वो सुपर सेट किसका? B का. इट इज डिनोटेड बाय A सुपर सेट ऑफ B. फॉर एग्जांपल ABC और AB. देखें A के एलिमेंट जो है वो ज्यादा हैं किससे? सेट B से. इसी वजह से हम कहेंगे कि A इज अ सुपर सेट ऑफ सेट B. उसके बाद यूनिवर्सल सेट मींस कायनाती सेट. अ सेट which contains all these sets under consideration is called a universal set. मीन्स सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर? यूनिवर्सल के अंदर अगर मौजूद हो तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे. किसी भी सेट के अंदर मौजूद हो. जैसे इट इज डिनोटेड बाय यू, इसको जो यूनिवर्सल सेट है उसको डिनोटेड किया जाता है कैपिटल यू के साथ. फॉर एग्जांपल ऑल पीपल लिविंग ऑन अर्थ, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन कैडेट कॉलेज पनवाकिल. ये सारे क्या है? यूनिवर्सल सेट है. उसके बाद है 7 नंबर इक्वल सेट, मसावी सेट. टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट. एग्जैक्टली सेम एलिमेंट का मतलब ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक जितने होने चाहिए. उसी को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट. फॉर एग्जांपल 1 2 3, बी में क्या है? 3 2 1. देखिए इधर भी 1 है, उधर भी 1 है. 2 इधर है तो उधर भी है, 3 इधर भी है तो इधर भी है. तो इसी को कहेंगे इक्वल. एक चीज याद रखें, इसमें ऑर्डर जो है आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ हमें क्या देखना है कि एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट होने चाहिए. उसके बाद 8वीं जो पॉइंट है इक्विवेलेंट सेट मींस मुतरादिफ सेट. टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इट इज डिनोटेड बाय ये सिंबल. यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब था तादाद एक जितना हो. फिर नंबर एक जैसे हो या ना हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1 3 ABC और 3 4 5. तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है. इसी वजह से ये दोनों क्या है? मुतरादिफ सेट है. जैसे नंबर ऑफ ए कितने? 3. नंबर ऑफ बी कितने? वो भी 3. तो दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट. उसके बाद नल सेट मींस खाली सेट. अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन सेट, नल सेट. सॉरी, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट. किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसी को हम एम्प्टी सेट या वाइड सेट भी बोलते हैं. It is denoted by Fi. For example, D is equal to null set. उसके बाद है C, order pairs means मुतरत्तिब जोड़े. In order set of 2 objects. Order लफ्ज से ही means pair से जाहिर हो रहा है कि means pair. किसी भी दो चीजों का पेयर, उसको अगर क्लोज ब्रैकेट मींस स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाए तो उसको कहते हैं हम मुतरत्तिब जोड़े. उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट. उसका जो डिफिकल्ट वर्ड है एक ही वर्ड था, म्यूचुअली मींस एसोसिएटेड, शामिल. ऑपरेशन ऑन सेट्स व्हेन 2 or more sets combine together to form one set under the given condition. Given conditions, operation on sets are carried out. There are 5 operation on sets. Which are they? Number 1, intersection of 2 sets, union of 2 sets, difference of 2 sets, complement of sets, Cartesian product of 2 sets. Number 1,
The intersection of two sets means दो सेटों का तकाता. The intersection of two sets A and B is the set of elements that are common to both set A and set B. इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर कोई चीज अगर कॉमन हो तो उसी को हम कहेंगे इंटरसेक्शन. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ए बी और बी के अंदर है ए बी सी, दोनों के अंदर कॉमन क्या है ए बी. तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बी. उसके बाद इसके दो टाइप है, एक है डिसजॉइंट सेट, दूसरा है ओवरलैपिंग. एक होता है गैर मुतराकिब सेट, दूसरा है मुतराकिब सेट. अब डिसजॉइंट सेट क्या है? टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट, दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन. दोनों में अगर कोई चीज कॉमन ना हो तो उसको हम कहेंगे मुतराकिब सेट है. और दोनों में कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो तो उसको कहेंगे हम ओवरलैपिंग सेट है. जैसे यहाँ पे ए बी सी है, इसमें 3 4 5 है, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, इसी वजह से इसको कहेंगे हम डिसजॉइंट. और इसके अंदर देखें two sets A and B are said to be overlapping if they have contain at least one element in common. जैसे यहाँ पे ABC है और इधर ACD है, दोनों में कॉमन क्या है? AC, इसी वजह से इसको कहेंगे ओवरलैपिंग सेट. नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का इत्तिसाल. मींस द यूनियन ऑफ टू सेट्स आर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट. दोनों को अगर मिला के रखें तो वो हमारा यूनियन सेट हो जाता है. इट इज डिनोटेड बाय यूनियन बी. फॉर एग्जांपल AB ABC, the combination of any two sets ABC, दोनों को अगर हम यूनियन किया तो ABC आया, इसी वजह से ये यूनियन ऑफ टू सेट्स है. फिर इसके दो पॉइंट्स हैं. एक है एग्जॉस्टिव सेट मींस मुकम्मल सेट. इफ A and B सबसेट ऑफ सेट यूनिवर्सल. पहले तो ये दोनों क्या होने चाहिए? सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल के, सच दैट A यूनियन B इज इक्वल टू U. फिर दोनों का जब यूनियन करें तो यूनिवर्सल के बराबर होना चाहिए. Thus the set A and B are called exhaustive set. फिर इन दोनों को हम क्या कहेंगे? exhaustive set. For example यूनिवर्सल है 0 1 2 3. A के जो एलिमेंट है 0 1 2 ये सबसेट है यूनिवर्सल का, और B का जो एलिमेंट है 1 वो भी सबसेट है यूनिवर्सल का. C के एलिमेंट है 2 3 वो भी सबसेट है यूनिवर्सल का. देन तीनों की हमने यूनियन की तो आंसर आया यूनिवर्सल. Thus the sets A, B and C are exhaustive set of universal. उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है इसकी वो है सेल. इफ A and B the subsets of a set universal such that the subset A and B non-empty and mutually disjoint. एक तो ये दोनों नॉन एम्पटी होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, और ये म्यूचुअली डिसजॉइंट भी होने चाहिए. म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये है कि दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, दोनों की जब इंटरसेक्शन करें तो एम्पटी बन जाए. For example, if A does not equal to empty, B does not equal to empty, A intersection B is equal to empty, and A union B is equal to universal, the sets A and B are called sales. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो उसको हम कहेंगे A और B को सेल्स. फॉर एग्जाम्पल U के एलिमेंट है 0 1 2 3, A का एलिमेंट है 0. A क्या है? नॉन एम्पटी है, B भी नॉन एम्पटी है, C भी नॉन एम्पटी है. फिर तीनों क्या है? सबसेट भी है किसके? यूनिवर्सल के. जब तीनों की हमने इंटरसेक्शन की तो रिजल्ट में डाल नल सेट. जब तीनों की यूनियन की तो आंसर आया यूनिवर्सल. तो इन तीनों सेटों को हम क्या कहेंगे? सेल्स. उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का फर्क. द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ A दैट आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ B. इसका मतलब ये है कि A के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे वो B में ना हो. ऐसे सेट को हम दो सेटों का फर्क बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय A डिफरेंस B. फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है AB और B के CAD. इसके अंदर इसका तरीकेकार और इसका प्रोसीजर ये है, जो कॉमन है वो काट दें, बाकी जो A में बचे वो रखें, तो आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाता है. उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, दो सेटों का तकमला. कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set is the set of all elements in the given universal set U that are not in A. इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब A के मींस एलिमेंट इसमें से यूनिवर्सल से निकाले जाएं, बाकी यूनिवर्सल में जो रहे उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. जैसे यहाँ इसको डिनोटेट किया जाता है A डैश के साथ. फॉर एग्जांपल, और A C के साथ भी जो है ना पावर C के साथ भी डिनोटेट किया जाता है. उसको यूनिवर्सल में है 1 2 3 अप टू 1 और A के अंदर है 2 4 6.
और अप टू सन। अगर ये इवन नंबर है, इसमें से निकाले जाएं तो आपका आंसर बाकी बचेगा 8 नंबर 135। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का कार्टेशियन ऑसिलेटर। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब ये है कि टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A multiply B is the set of all possible order pairs where the elements of A, पहले तो ये क्या बनाने हमें, ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनाने। फिर वेयर द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, द फर्स्ट, जो एक एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट में रखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ बी और सेकंड, फिर बी के जो एलिमेंट आएंगे वो सेकंड में रखेंगे, किसमें, ऑर्डर पेयर्स में। फॉर एग्जांपल जीरो के एस के जो एलिमेंट है वो 0 1 है और टी के जो एलिमेंट है 1 2 3 है। इसका जो तरीकेकार होता है सॉल्यूशन करने का, 0 को रखें 1 के साथ, 0 को रखें 2 के साथ, 0 को रखें 3 के साथ, 1 को रखें 1 के साथ, 1 को रखें 2 के साथ, 1 को रखें 3 के साथ, तो आपका ये ऑर्डर पेयर्स बनते जाएंगे। अब ये देखें 0 1 0 2 0 3 1 1 1 2 1 3। अब ये टोटल कितने बने आपके, 6 ऑर्डर पेयर्स बने। कैसे पता चले कि ये ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे, आप क्या करें, जो ऑर्डर ऑफ सेट्स सेट एस के हैं 2 हैं और 3 के ऑर्डर कितने, 3, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने बनेगा, 2 3 6। अब पता चला कि इसके जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो 6 बनेंगे। अब माय डियर कैडेट्स, जो हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स थे, एक था तो आपने डिफिकल्ट वर्ड लिखे, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी सेट की, वेव्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट पढ़ा, नोटेशन फॉर सेट्स ऑफ नंबर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा। जब आप एक्सरसाइज को लेंगे, एक्सरसाइज 1.1, उसका जो 1 से लेकर 7 तक है, तो टोटली जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कहाँ से, इसी जो है ना 7 टॉपिक्स के साथ। आप कोशिश करें, आपका होमवर्क यही है, आप इनको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करके देखें। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट एंड आपकी एक्सरसाइज 1.1। जब वो सिंप्लीफाई करेंगे तो और आपको आसानी होगी सिंप्लीफाई करने में। ओके, अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक।